ये था कि सिर्फ कोर्स स्टडी इनफ है आप एक बड़े स्टेज पे पहुंचने के लिए, जैसे कि आपका, या फिर हम लोग ओपन सोर्स की तरफ भी देख सकते हैं। भैया जैसे कि आपने विप्रो में काम किया था उस दौरान आपने ये नोटिस किया होगा कि फ्रेशर से वो क्या डिमांड करते हैं। Like we should focus on machine learning or any specific course or DSA is fine for placements. अभी एआई का बहुत कुछ चल रहा है, बट तो जैसे कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है, उन लोगों का क्या डिमांड है कि जैसे कि हम लोग सारे चीज में प्रोफिशिएंट रहे या किसी एक में एक्सीलेंट रहे या बाकी सब पर नॉलेज रहे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि इंटरव्यू में भी वो देखेंगे और जॉब में भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि I see a lot of students is waiting for your proper response, and especially you have to explain about your career journey. Okay, so should I start from joining Siemens? Right. So hi everyone. So I think there is afternoon. So good afternoon to you. So I joined Siemens on 2012. Yeah, it's 2012-15 batch. From that batch and got placed in Wipro Technologies in 2015 from campus placement. That was the first time I think Wipro came to any private college. Otherwise, Wipro or any multinational company used to at that time used to come from for those all government colleges like Science College or LMS or those colleges. For the first time, the multinational company come to private college. So I along with around 60 students got. Should be our basic thing. Like we should focus on machine learning or any specific course or DSA is fine for placements. Okay, so the current level of knowledge I think you will get on these undergraduate programs. Being in Siemens, I think have lots of workshops or special courses already apart from the university's syllabus is already being covered in the Siemens. So I think the clouds or machine learning. See the AI when you are just knowing the things like seeing paper that you need how the things how the large language models are working. So these things needs time. Or so what I suggest, do not deviate with much of the technologies. Learn the basics first. Learn the DSA. DSA is very important. When you see all the big MNCs, the big global MNCs, the product-based companies like Google, like Yahoo, Microsoft, Facebook, even Tesla. So those technologies, those companies are based on DSAs. So when you learn DSA, the programmings and everything. So if you targeting a big jump in the career on the long, you need DSA that DSA covered, and DSA very extensive DSA covered, not the base one, but that base should be created from here. And I know like I got to interact with BTech students also, but the DSA, I think DSA is covered by Amit Shukla sir, right? Ravi Soni. In your time, who is covering the DSA? Ravi Soni. In my time, yeah, so we are Amit Shukla sir is also covering DSA. So DSA is very intensive Siemens at that time only, in the year of 2012. So I think nowadays it is getting better only. So just focus on the any one cloud tech. Don't jump into cloud. Like we have AWS, GCP, Azure, and everywhere the things are the same, different. So I suggest don't jump between just any one cloud and learn the things on the cloud. In that you will get to know the infrastructure of the cloud, how the cloud is working, what is the things. It's not just you are grasping the things, and when in that case when you are appearing for any interview, you will get confused, because when you tell any interviewer like you know cloud, and you will then he or she will ask which cloud, and if you name all the clouds, then he can ask anything from and terms of any one of the cloud. But you should be a specific which cloud you are learning, and you should learn that cloud only.
And yeah, machine learning, machine learning, AI, everything is that same thing with a different approach. So you should learn the basics, but at this point of your career, don't concentrate more on that apart from the base. Just create that base, get the job. See, know your market. That is the most important thing. You need to crack the interviews, knowing everything. And if you are not able to crack the interview, then it doesn't matter for you, especially because you need to know the market. That is why I told you need to know the market. What is the market? The job market is expected. Just learn that thing, get placed. Once you get placed, you got the peace of mind as well. You got your environment and get placed. Whatever company, don't in the beginning of the career, don't concentrate on the package thing, because you might be not getting more greater package in larger companies like MNCs. In smaller companies might get good package, but again the opportunity matters, because the job is not a 1 year 2 year things. It is a lifelong thing. Get that, and try to create a base first, and know yourself what you are good at, and try to excel on that first, and then you can create your own environment, like which cloud you like, how much grasp you want to have on machine learning, anything. But DSA, any one programming language you should also excel on, like C, C++, Java, Python, anything. Any one language you should know. That is the most important. If you know more than one language, then it's very good. But if at least you should know one language, programming language, one base that you should cover. भैया जैसे कि आपने विप्रो में काम किया था, उस दौरान आपने ये नोटिस किया होगा कि फ्रेशर से वो क्या डिमांड करते हैं। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है, उन लोगों का क्या डिमांड है कि जैसे कि हम लोग सारे चीज में प्रोफिशिएंट रहे, या किसी एक में एक्सीलेंट रहे, या बाकी सबका नॉलेज रहे। ओके, सी कंपनीज एक्सपेक्ट करती है कि यू शुड हैव दैट अर्ज टू लर्न. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अगर आपको लर्न करने का इच्छा है तो कंपनी तो वो सिखा देगी. एंड द इन्वायरमेंट इन विच दे पुट यू इन, और वो वर्क प्रेशर और एवरीथिंग, you will definitely learn. The company will also know that. But the most important thing जो कि इंटरव्यू में भी वो देखेंगे और जॉब में भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो लर्न करने की वो एटीट्यूड होना चाहिए. अभी एआई का बहुत कुछ चल रहा है, बट एआई में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो अभी, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है. अभी एआई में जाओगे तो बाकी पूरा, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. क्योंकि अभी स्टडी फेज में ही हो, एक तो यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो गया. नेक्स्ट थिंग इज बी जॉब रेडी. ओके, तो पहले प्लेस्ड हो, उसके बाद देखना है जॉब. अभी ऐसा नहीं बना है कि एआई पे ही सब कुछ है. अभी एआई इंट्रोड्यूस हो रहा है. आप ओपन एआई एक कंपनी आया है जो चैट जीपीटी ये सब बनाया है. एनवीडिया आ रहा है मार्केट में, बट अभी ये सब सारा टेस्टिंग फेज में ही है. बहुत सारा चीज डेवलप हो गया है, बट वो परफेक्ट नहीं हुआ है. तो टेक्नोलॉजी अभी वो इवॉल्व करेगा. बहुत सारा चीज बन के आएगा. तो अभी पूरा कैरिकुलम बनने में टाइम लगेगा उसका. अभी भी 20 साल पीछे चले जाओ, 10 साल पीछे चले जाओ, या 10 साल आगे चले जाओ, डेटा स्ट्रक्चर वही रहेगा, डेटा बेस वही रहेगा. ओरेकल कहीं नहीं जा रहा, वो वही रहेगा. प्रोग्राम अभी भी वही है. अभी भी C++ का यूज होता है. अभी भी नोकिया बहुत जगह C यूज करता है. अभी बहुत जगह से C खत्म हो गया है. C पढ़ा भी नहीं रहे बहुत जगह, क्योंकि C पर. बट मार्केट में प्रोग्रामिंग है, जावा भी है, पाइथन भी है, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स भी आया है, बहुत सारा. अभी मार्केट में भी ETL, इन्फॉर्मेटिका, ये सब कंपनीज आई है. तो बहुत सारा टेक्नोलॉजीज और टूल्स इवॉल्व होगी, बट बेस वही रहेगा. चेंज क्या होगा? वे ऑफ राइटिंग. अभी पता चला कि C या जावा में जो हम कोड 50 लाइन में लिख रहे थे, पाइथन में वो 2 लाइन में हो जाएगा लाइब्रेरी यूज करके. तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि अभी देखो, एक तो इम्पोर्टेंट इस बिहाफ में है कि हमें नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी
क्या में क्या अभी आईटी में है तो आईटी कैसे इवॉल्व कर रही है और आईटी में क्या क्या है वो इम्पोर्टेंट है जानना। बट वहां हम डायरेक्ट नहीं जंप कर सकते। आज पता चला मशीन लर्निंग है तो मशीन लर्निंग पे चले गए। कल पता चला कि एलएलएम अभी बहुत सारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल चल रहा है, अभी सब उसका ही बात कर रहा है, जेन एआई का बात कर रहा है सब, तो उस पे चले गए। कल पता चला फिर रोबोटिक्स में कुछ बहुत बड़ा चीज हो रहा था, फिर रोबोटिक्स पढ़ने लग गए। तो वैसे कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। सो बेस पकड़ो और नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए कि कौन क्या क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। बट कंपनीज अभी जो मैं बोल रहा हूँ इंटरव्यूज में देखेगी एटीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और हाउ मच यू नो द बेस। उनको भी पता है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है तो वी आर नॉट लुकिंग फॉर मास्टर्स। उनको पता है कि एटीट्यूड रहेगा तो हम सिखा देंगे। दे हैव अ वेरी गुड ट्रेनिंग डिवाइस। एक और क्वेश्चन है कि जैसे जो हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ के दौरान प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा वहाँ पे? वो आगे जाकर हेल्प करेगा या उससे उसका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो मैटर करेगा जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे हम लोग? यस प्रोजेक्ट डेफिनेटली मैटर करेगा ना, क्योंकि अभी जो भी कुछ सीख रहे हो लैंग्वेज या कुछ भी सीख रहे हो, अब यहाँ से अभी तक ग्रेजुएशन के पहले जो भी सीख रहे थे उसका मकसद क्या था कि करियर में आगे जाना है पढ़ने के लिए। अगर 10th पास करेंगे तो भी 11th 12th में जाएंगे, 12th पास करेंगे तभी ग्रेजुएशन में जाएंगे, अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे कि डिग्री उधर अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। बट अभी क्या है, इसके ग्रेजुएशन के बाद यू हैव टू गो टू जॉब। जॉब में क्या है, जॉब में एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ही है चीजों का। आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है रियल लाइफ सिनेरियोस पे। जिधर भी अभी आप देखोगे कोई भी चीज है सब टेक्नोलॉजी पे ही चल रहा है। बिना टेक्नोलॉजी के कुछ भी नहीं बन रहा है। एक सुई भी बन रहा है वो भी मशीन से ही बन रहा है, जिसमें बट वो भी एक मशीन से चल रहा है, उसमें भी प्रोग्रामिंग यूज है। पर सब कुछ प्रोग्रामिंग पे है, सब कुछ टेक्नोलॉजी पे है। सो प्रोजेक्ट करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अमंग्स ऑल, क्योंकि उससे पता चलेगा जो हम पढ़ रहे हैं, जो बुक्स पे कॉपीज पे लिख रहे हैं, जो बुक्स में लिखा हुआ है वो क्या है, उसका क्या है रियल लाइफ सिनेरियो, उसका यूजेस क्या है। तो वो सब में प्रोजेक्ट यूज आएगा और कंपनीज में ट्रेनिंग्स के बाद ही प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय करेंगे वो। तो एनीवे दैट इज इम्पोर्टेंट। जैसे कि हम लोगों ने भी सुना कि पहले आप प्लेस्ड हुए, देन आप अभी स्विट्जरलैंड में। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सिर्फ कोर्स स्टडी इनफ है आप एक बड़े स्टेज पे पहुंचने के लिए जैसे कि आपका, या फिर हम लोग ओपन सोर्स की तरफ भी देख सकते हैं? व्हाट इज ओपन सोर्स? इट्स लाइक बाहर के कोई कोर्सेज, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज और स्टडी इस यूट्यूब जैसे। सी बाहर का कोर्सेज आई डोंट प्रीफर, बट देखो कोर्स तो है ही एट फर्स्ट। अभी सीमेज में सिंस पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि बाहर का कोर्स का जरूरत है। हमारे टाइम में भी बहुत लोगों ने लिया था, है नहीं, कुछ फायदा नहीं, ऑनलाइन भी नहीं है ऑफलाइन भी नहीं। यहाँ सीमेज का खुद का बहुत सारा वर्कशॉप और बहुत कुछ होता है, प्रोजेक्ट्स ये सब। और मैं भी देखता रहता हूँ कि IITs के साथ IIM के साथ मिल के बहुत सारा करते रहता है, तो बहुत सारा चीज तो उससे ही कवर हो जाता है। बहुत सारा चीज कॉलेज का सिलेबस में ही कवर हो रहा है। और सीमेज का अच्छा बात क्या है कि कॉलेज सिलेबस के अपार्ट फ्रॉम दैट सिलेबस में बहुत की सिलेबस में जो भी है, क्योंकि वी ऑल नो कि यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो होता है वो करेंट ईयर में वो सब कुछ इंक्लूडेड नहीं रहता है, क्योंकि हर साल वो सिलेबस अपडेट नहीं होता है यूनिवर्सिटीज के। बट स्टिल सीमेज का कोर्स का करिकुलम अपडेट होता है, उसमें कुछ नया उसको दिखता है तो वो अलग से वर्कशॉप करा के और कुछ करा के वो कवर कर लेते हैं। ऑनलाइन कोर्सेस में तो ऐसे कि बहुत फ्रॉड भी चल रहा है कि हम डायरेक्ट प्लेसमेंट करा देते हैं हमारे कोर्सेज से। यहाँ गूगल में प्लेस हो गए, याहू में प्लेस हो गए, इनफैक्ट छोटा कंपनी में भी प्लेस हो गए, या पेटीएम में प्लेस हो गए, कहीं भी प्लेस हो गए, स्विगी जोमेटो कहीं भी प्लेस हो गए। बट एक्चुअली वो जितना वो दिखा रहे हैं उससे प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। आप जब तक वो सेटअप में काम पढ़ोगे नहीं, आप जब तक आपका बेस वो क्लियर होगा नहीं, क्योंकि अभी ऑनलाइन कोर्स क्या का मिलेगा, ऑनलाइन कोर्स मिलेगा आपका क्लाउड का, ऑनलाइन कोर्स आपको मिलेगा अभी नेक्स्ट जेन एआई जो चल रहा है उसका। बट उसका बेस ही अगर नहीं रहेगा, अभी से आप करोगे तो उसका बेस ही नहीं रहेगा, तो फिर कैसे बनेगा वो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अभी कॉलेज के सिलेबस पे, जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उस पे ध्यान देना है। सीमेज में जो भी वर्कशॉप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इवन पता नहीं है मुझे कि क्या हो रहा है। अगर मान लो अभी एंड्रॉइड का कुछ वर्कशॉप मान लो हुआ, 1-2 वीक का एंड्रॉइड का वर्कशॉप हुआ, बट मुझे पता नहीं है क्योंकि एंड्रॉइड में होता क्या नहीं होता है। तो अगर 2 वीक में मैं क्या जान जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। तो वो एटीट्यूड नहीं रखना है। 2 वीक में
उनके पास वो उनका जो करिकुलम रहता है वो वर्कशॉप का, उनको पता रहता है कि लोगों को नहीं पता है कुछ, तो उस टाइप से ही डिवाइड वो पूरा डिजाइन रहता है। तो यू शुड अटेंड दैट थिंग, वहाँ जो भी मिलता है सारा ग्रास्प करो, क्योंकि अगर जानोगे नहीं कि वो उधर काम क्या हो रहा है तो पता कैसे चलेगा कि उधर जा सकते हो कि नहीं जा सकते। यू शुड विजिट दैट। सो वट एवर थिंग्स आर टॉट इन क्लासेस, वट एवर वर्कशॉप्स एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द कॉलेज, यू शुड अटेंड ऑल दैट। और उससे ज्यादा आई डोंट उससे फायदा करने जा रहा, ज्यादा पढ़ने का भी वो भी अभी कॉलेज टाइम में बहुत ज्यादा करने का भी जरूरत नहीं, थोड़ा लाइफ भी इंजॉय करो, कितना ही जरूरत पड़ेगा इंटरव्यूज की। ओके, डोंट नीड फॉर एनी ऑनलाइन क्लासेस और एनी एक्सटर्नल क्लासेस। अपने बारे में बताइए, आपका सेशन क्या था, कोर्सेज कौन सा था, सीमेज में आपका कैसा जर्नी रहा, वो शेयर कीजिए। I joined CMES in 2012. I completed my 12th on 2012 and then I joined CMES for BCA course, and my batch was 2012-15. So I joined there, and I used to attend all the workshops, whether it is Android or at that time cloud was introducing, not that much of exposure was there for cloud. But yeah, something we know that something is coming in the market, like the thing that you can see nowadays for AI. Similarly, the clouds were there at that time. So see, being that nascent phase of technology, then also we have one or two workshops are organized on the cloud as well. So I used to attend all those workshops and then meticulously attended all the classes. Most important thing nowadays, I can see like students are not attending classes as well. So attending regular classes is the most important thing, because this is not only enhancing your habits of in your career, in your life. If you are attending the classes, you will have have a flow of learning, because the syllabus is designed that way and teachers are teaching that way only. If you are not attending classes and thought like I will take the notes from my classmates and then I will attend the next, then those things are getting piled up, and at the time when you learn, you have to see, reading the things and passing in the exam is one thing and the learning is a different thing. So that learning curve is not good when you are not attending classes. So attend the classes that I did. I think I have attendance of more than 80 to 90%. So I have attended most of the classes, and then Wipro came. Yeah, I think I attended the interviews only for Wipro, because Wipro was the first company that came, and I got selected on that, and then I didn't attend it. Yeah, I didn't appear for any more interviews. So then I joined Wipro in Delhi, and there I learned the various technologies, and then I moved to Pune. In Pune, I worked on Informatica. A tool is the Unix operating system. I worked on Unix, and yeah, so those and databases are there. Some more technologies are there, because when you are working on a live project, there are multiple technologies. You are not going to face a single technology. But yeah, the principal technologies are Informatica tool is there for transform the data for the banks. So majorly I worked with banks only. And for the brief period, I worked for an insurance company as well, UK-based insurance company. And again, I worked for Credit Suisse Bank, then UBS. Yeah, so I worked on various banks, managing their data, and now I'm working with their payment infrastructure, so that all the payments that went to their infrastructure went smoothly. These are the things that I did in my more than 11-year careers called job plus image, both if you can include together. स्टूडेंट के लिए कुछ मैसेज है आपके साइड से तो दे दीजिए। मैसेज यही है, जस्ट अटेंड द क्लासेस, टेक द क्लासेस वेरी सीरियसली, attend all the things, all the workshops, all the things that are said by the teachers, professors, everything, and you will definitely excel, because बिहार में इससे अच्छा प्लेस नहीं है जहां से आप कॉलेज से प्लेस्ड हो जाओ।
college is making lots of attempts or lots of time to get you placed apart from the college degree that you will get. So take the college time seriously and attend and follow the teacher's instructions. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for having me and listening. Listen. Thank you, sir. Thank you.